Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem find palindrome with fixed length from today's lead code contest, or you can say lead code contest, weekly contest 286. Okay, so in this video we will see the editorial video for current problem find palindrome with fixed length. Fine. So I didn't participated in this contest since I thought I would, but I was late. Okay, so I solved them after the contest. Given an integer array queries and a positive integer int length, return an array answer where answer of I is either the query's ith smallest positive palindrome of length, int length, or -1 if no such palindrome exists. Okay, so a palindrome we already know that is a number that reads same backwards and forwards. Palindrome cannot have leading zeros. That is fine. Okay. So what the question is saying is uh, we have some queries. Okay, suppose first, second, third, fourth, fifth, and 90th. Okay, and we have a length that is equals to 3 right now in this test case. Okay, we have to tell length 3 palindromes and which are in this order in their values obviously. Okay, so we have to tell first smallest palindrome of length 3, then second, then third, then fourth, then fifth, then 90th and smallest. Okay, so if you will see from here that first smallest palindrome of length 3 can be is equals to 101. Okay, why I will tell you later. I hope this is all intuitional also, like, and second smallest palindrome will be 111, then 121, 131, 141 and 999 will be the ninth year. Okay, so I hope यहाँ तक problem पूरी clear हो गई होगी. Now let's just see the constraints of the problem. If we say that what are the length constraints, we have length of maximum 15. Okay, so this cannot be a issue. Like length की जो maximum value है 15 है, ठीक है, और जो queries हैं those are 10 raised 4. Okay, so we can afford around queries O of Q. लेट से अगर क्वेरीज का साइज मैंने क्यू लिया तो O ऑफ क्यू कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ क्यू लॉग क्यू, और अगर मैं लेंथ के करेस्पॉन्डिंग बोलूँ, सिंस वी हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. ओके, तो इस केस में तुम ऐसा भी कुछ सोच सकते हो दैट somewhere we have to traverse in the number also, so we can say that q cross length can also be a valid complexity. Okay, fine. नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में व्हाट इफ यू कैन सी सम पैटर्न. ओके, सो मैं नोट पैड खोल लेता हूँ. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस. वी ऑलरेडी नो दैट पैलिंड्रोम ऑलवेज हैव अ पैटर्न. Pattern in the sense what I am talking is that first half of the string will be equals to second half of the string. Okay, if length is even obviously. तो suppose मेरा कोई नंबर है, suppose 10, ठीक है, और मुझे सपोज 4 लेंथ का, मेरी जो इंट लेंथ की वैल्यू है वो 4 है सपोज. ओके, और मुझे 4 लेंथ का फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. तो मैं सबसे पहले 4 लेंथ के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, 1000. ओके, इसकी लेंथ कितनी है और ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. तो ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस ओनली. ओके, एंड दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ इससे जस्ट बड़ा पैलिंड्रोम मेरा क्या हो सकता है. ऑब्वियसली इफ आई से 1001, दिस इज अ पैलिंड्रोम एंड लेंथ 4. ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट one, so we can say that first smallest palindrome of length 4 can be 1001. Okay, now if you see some pattern you can easily see that ये जो palindrome है इसका जो फर्स्ट हाफ है वो 10 है और उसी का रिवर्स इसके पीछे लगा हुआ है दैट इज 10. ओके, ये इन दिस ऑर्डर में कुछ लगा हुआ है. फाइन फाइन. नाउ इफ आई से मुझे सेकेंड इससे बड़ा चाहिए जस्ट, ठीक है, तो सेकंड बड़ा पैलिंड्रोम अगर मैं कुछ एग्जांपल से देख लूं, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, अगर मैं एग्जांपल से देखूं तो ले जैसे यहाँ से, ठीक है, 4 लेंथ का सेकंड सबसे बड़ा पैलिंड्रोम क्या है, 1111. ओके, तो यहाँ पे देखो सेकंड पैलिंड्रोम, ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट था, सेकंड स्मॉलेस्ट मेरे पास आया 1111. इसकी जो रिवर्स स्ट्रिंग है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, और यू कैन से प्रीफिक्स और
सफिक्स स्ट्रिंग ऑफ अ पैलिंड्रोम दैट इज 1 1 और उसकी सफिक्स क्या है 1 1। ठीक है, अगर इसका मैं सपोज थर्ड वाला जनरेट करने की कोशिश करूं, थर्ड वाला आई जैसे फोर्थ वाला मेरे पास है और फोर्थ वाला 1331 है। ठीक है, तो थर्ड वाले को अभी होल्ड पे रखते हैं और फोर्थ वाला देखते हैं 1313। अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखूं, ठीक है, फर्स्ट वाले की प्रीफिक्स स्ट्रिंग मेरे पास 10 थी, सेकंड वाले की 11 थी, थर्ड वाले की मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन फोर्थ वाले की 13 थी। ओके, थर्ड वाला कहीं ना कहीं आई विल से कि इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में आई एम सेइंग कि मेरे पास सिंगल पैलिंड्रोम है। ओके, तो नंबर 1111 और 1331 के बीच में मेरे पास एक सिंगल पैलिंड्रोम है जो मेरा 4 लेंथ का थर्ड स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम है। फ्रॉम दिस आई कैन सिंपली लाइक ये मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस केस के बीच में एक पैलिंड्रोम बनाना है, तो मैं ब्रूटली चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, और आई कैन सिंपली से कि उसकी जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग होगी वो 12 होगी, और यहाँ पे तुम अगर पैलिंड्रोम लिखोगे वो, तो यू कैन ईजिली से दैट दिस इज अ पैलिंड्रोम, और ये इससे बड़ा है इससे छोटा है। आई कैन से दैट 1221 इज द थर्ड स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 4। फाइन, अब इस क्वेश्चन में जब तुम इतना कंक्लूजन निकालोगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा। हाउ, इफ यू आर डीलिंग विथ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 4, ओके, अगर पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 4 से डील कर रहे हो, यू कैन इजिली से कि मैं 2 लेंथ की प्रीफिक्स स्ट्रिंग चेक करूं। अगर फर्स्ट प्रीफिक्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, क्योंकि मेरा टोटल पैलिंड्रोम 4 लेंथ का है, तो मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली क्या बनेगा 1010। ठीक है, तो ये 10, और ये चीज़ मुझे इजीली पता है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का कितना होता है 1000, तो उससे मैं डायरेक्टली ये क्रिएट कर सकता हूँ +1 करके। फाइन, 10 मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा फर्स्ट स्मॉलेस्ट का, 11 सेकेंड स्मॉलेस्ट, 12 थर्ड स्मॉलेस्ट, 13 फोर्थ स्मॉलेस्ट। नाउ इफ यू विल सी वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस वन, और यू कैन से दिस वन ऑल्सो, सिक्स्थ। ठीक है, वो भी तुम्हारा सही बैठ रहा है, दैट इज 15, प्रीफिक्स हो जाएगा उसका 15, दैट इज 10 + 6 - 1। फाइन, और तुम्हें बस उसका रिवर्स उसके आगे ज्वाइन कर देना है, और तुम्हारा फोर्थ स्मॉलेस्ट या सिक्स स्मॉलेस्ट बन जाएगा लेंथ 4 का। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम दिस कि यहाँ पे एक पैटर्न होता है पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ n बनाने का। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ तुम कह सकते हो मैथ्स का फॉर्मूला है और समथिंग, कि इफ यू वांट टू हैव n लेंथ पैलिंड्रोम, ओके, तो ऑब्वियसली यू विल चेक फॉर n/2th प्रीफिक्स, और अगर स्मॉलेस्ट सेकेंड चाहिए, ठीक है, तो तुम स्मॉलेस्ट सेकेंड कैसे चेक कर सकते हो? फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स क्या होता है 10, स्मॉलेस्ट 11 हो जाएगा। सिंस 11 का जस्ट तुम बाद वाला उसके आगे ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा लेंथ 4 बन जाएगा। फाइन, अब इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ 1001 मेरे पास 4 लेंथ का है और ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 1111 मेरा नेक्स्ट बनेगा और वो सेकेंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, क्यों मैं खाली प्रीफिक्स लेंथ के वैल्यूज चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और नॉट सफिक्स, तो लेट्स जस्ट से दिस, क्योंकि जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर चेक करूंगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने में जैसे ही मेरी कोई भी डिजिट चेंज हुई, ठीक है, सपोज यहाँ से 1 1 सेम था दोनों में, और 0 से ये डिजिट 1 हुई। ठीक है, फाइन, तो ये जस्ट इससे बड़ा नंबर है, राइट है, ठीक, और मैं इस नंबर का प्रीफिक्स लेके आगे एक इसी का रिवर्स लगा के पैलिंड्रोम बना सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा हूँ इस लॉजिक को, और ये इंट्यूशन ही है कि तुम्हें कैसे मतलब बिल्ड करना है अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो मैं जैसे ही कोई भी डिजिट प्रीफिक्स लेंथ में चेंज करूंगा, दैट इज 0 से 1 करूंगा, इसका अगर पैलिंड्रोम बनाऊंगा तो वो जो नंबर होगा उसकी भी डिजिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, और सिंस ये 10 से जस्ट बड़ा नंबर है 11, तो मैं 11 से उसका 4 लेंथ का पैलिंड्रोम ऑलवेज बना सकता हूँ। दैट्स वाई आई कैन से कि 4 लेंथ का जो पैलिंड्रोम 1001 है उससे जस्ट बड़ा पैलिंड्रोम 4 लेंथ का 1111
1 1 ही होगा, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन से 1 1 1 1 से 4 लेंथ का पैलिंड्रोम जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 1 2 2 1, बिकॉज मेरी जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, सेकेंड डिजिट जैसे ही मेरी चेंज होगी 1 से 2 होगी, ठीक है, उस 2 के लिए मुझे आगे पैलिंड्रोम बनाना है। 12 के आगे जैसे ही पैलिंड्रोम बनेगा, और वो एक सिंगल पैलिंड्रोम बनेगा कौन सा, 1 2 2 1, ओके। इस वे में तुम कुछ समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ दिस वाज अबाउट इवन लेंथ पैलिंड्रोम, ओके। ये इवन लेंथ के लिए था। ऑड लेंथ के लिए तुम कैसे बनाओगे, यहाँ पे इस एग्जांपल में समझ लेते हैं। सपोज लेंथ इज इक्वल टू 3 थी, ऑड थी, और तुमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग की तुमने किससे, 1001 से, ठीक है। इसका प्रीफिक्स लेंथ लेजस से मैं ले लूंगा 10, ठीक। अब तुम इसका रिवर्स कैसे ज्वाइन करोगे आगे पैलिंड्रोम बनाने के लिए, ऑब्वियसली तुम जो उसकी लास्ट डिजिट है, दैट इज जो पैलिंड्रोम इवन लेंथ का है यहाँ पे, ठीक है, इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है। तो अगर ये पूरा पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो तुम्हें ये प्रीफिक्स में ले रहे हो, ठीक है, और तुम्हें इसको खाली सफिक्स में ऐड करना है रिवर्स करके, ठीक है। तो तुम ये वाले डिजिट को भूल जाओगे यहाँ पे, और बाकी का बचा हुआ नंबर यहाँ पे ऐड कर दोगे, फाइन, ओके। तो 10 के आगे तुमने 0 भूल दिया और 1 ऐड कर दिया, 11 के आगे 1 भूल गए और 1 ऐड कर दिया, 12 के आगे 2 भूल गए और खाली 1 ऐड कर दिया। इस तरह तुम बिल्ड कर सकते हो। 90th कैसे बिल्ड करोगे, 10 प्लस 90, ठीक है, तो 99 बन जाएगा। 10 प्लस 90 माइनस 1, ऑब्वियसली क्योंकि 10 तुम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो 99, और 99 जैसे ही तुम्हें मिला उसके आगे 9 तुम्हें भूलना है और 9 रिवर्स में ऐड करना है, ठीक है, फाइन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे तुम्हें आंसर ब्रूट फोर्सली बिल्ड करना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कोड, यू विल गेट इट इजीली, ठीक है। तुम्हें कोड से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मेरा मेन फंक्शन था, मैंने यहाँ पे आंसर लिया जिसमें मैं अपने सारे पैलिंड्रोम से स्टोर करूंगा, फिर मैंने एक क्वेरीज में इटरेट किया और मैंने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया अपना पैलिंड्रोम बिल्ड करने के लिए, दैट इज फंक्शन ऑफ वैल्यू पास की और लेंथ पास की, और उसको पुश कर दिया। अब मेरा फंक्शन क्या कर रहा है ये देखते हैं। अब लेट्स जस्ट से मुझे 10th स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है ऑफ लेंथ 4, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रीफिक्स वाली स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी और या प्रीफिक्स का नंबर निकालना पड़ेगा। और अगर इवन लेंथ है तो मुझे जस्ट रिवर्स करके उसको आगे ऐड कर देना, और अगर ऑड लेंथ है तो मुझे लास्ट डिजिट को भूल के आगे ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने एक वैल्यू ली प्रीफिक्स जिसमें मैं प्रीफिक्स नंबर स्टोर करूंगा और एक लेंथ, ठीक है। नाउ इफ लेंथ ऑड है तो मैं लेंथ बाई 2 कर दूंगा, अगर इवन है तो लेंथ में लेंथ बाई 2 माइनस 1। ये चीज़ अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ। फिर मैंने प्रीफिक्स नंबर को किसके इक्वल बनाया है, 10 इंटू 10 रेज लेंथ के, ठीक है, वाई। लेट्स जस्ट से मेरी जो लेंथ है वो इवन है, ठीक है। तो इवन में मैंने क्या किया, n बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1। तो मैं प्रीफिक्स में क्या ले रहा हूँ, 10 रेज 1, है ना, जो कि है 10। तो मैं किसी भी प्रीफिक्स जिसकी भी लेंथ मुझे पता है मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, स्मॉलेस्ट वाला प्रीफिक्स वो कितना हो जाएगा, 10 रेज लेंथ माइनस 1। अगर ये लेंथ जो है प्रीफिक्स की लेंथ है तो प्रीफिक्स की लेंथ कितनी थी 2, तो लेंथ माइनस 1 मतलब 10। इस वे में मैंने प्रीफिक्स बना लिया। अब सपोज मुझे qth स्मॉलेस्ट निकालना है तो मैंने उसमें कितना ऐड कर दिया, q माइनस 1, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग 10 ऑल्सो। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे उससे एक स्ट्रिंग बनानी है, प्रीफिक्स स्ट्रिंग, तो मैंने आंसर में प्रीफिक्स स्ट्रिंग ऐड कर दी। अब मुझे उसका जस्ट रिवर्स करना है तो मैंने एक रिवर्स स्ट्रिंग ली। लेंथ अगर ऑड थी तो मैंने लास्ट डिजिट अपना जो नंबर था उसकी भूल गया, ठीक है, लास्ट डिजिट यहाँ से हटा दी। अब ये लाइन मैं अभी इसका एज केस बताता हूँ, ये एक एज केस था, ठीक है। और तुमने जो भी रिवर्स था, रिवर्स में तुमने उस स्ट्रिंग को दैट इज प्री को रिवर्स करके ऐड कर दिया। अब एंड में चेक किया तुमने, अगर तुम्हारा जो आंसर है दैट इज प्रीफिक्स प्लस सफिक्स की लेंथ एल के इक्वल है तो तुमने उसको नंबर में चेंज करके पुश कर दिया आंसर में, अदरवाइज माइनस 1, ओके। अब ये एच केस क्या है यहाँ पे ये देखते हैं। सपोज ये मैंने जब सबमिट किया था, जब मुझे पता चला था, ठीक है। सपोज तुम्हारी जो एल की वैल्यू है वो है 1, ओके। तो तुम्हारी जो प्रीफिक्स की वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी समथिंग, ठीक है।
अगर प्रीफिक्स की वैल्यू 0 आ गई, फाइन, अगर प्रीफिक्स की वैल्यू 0 आ गई तो तुम रिवर्स में क्या ऐड कर रहे होगे, एक 0, बट तुम्हें वो 0 रिवर्स में ऐड करना नहीं है, ठीक है। तुम अगर तुम्हें इसका एक एज केस चाहिए तो तुम इसको यहाँ से हटा के, इस लाइन को यहाँ से हटा के देख लो और तुम्हें सिंपली एज केस मिल जाएगा वो, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड, और तुम देख सकते हो, ठीक है। ईजी है यहाँ पे एज केस देखना। मैं एक एज केस तुम्हें दे देता हूँ। सपोज एल की वैल्यू फाइन क्वेश्चन में 1 थी और मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट बताना था, तो वो क्या हो जाएगा पैलिंड्रोम, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड 1 लेंथ का पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अब लॉजिक लगा के इसमें देख लेते हैं सिंपल सा, जो भी अपना लॉजिक है। सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स एरे निकालनी है और फिर मुझे सफिक्स एरे निकालनी है, ठीक है। तो इसकी प्रीफिक्स एरे क्या हो जाएगी, 1, है ना। इसकी प्रीफिक्स एरे क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट 1 लेंथ का पैलिंड्रोम 1, ओके। अब क्वेरी कितनी है, 2, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा, दैट इज q माइनस 1, तो ये 2 बन गया, फाइन। अब सिंस l की वैल्यू मेरी ऑड थी, ठीक है, अब मैं इसकी निकाल रहा हूँ रिवर्स, सफिक्स यू कैन से। सफिक्स जब मैं निकालने जाऊंगा तो सिंस l की वैल्यू ऑड थी तो मैं 2/10 कर दूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट इसकी भूलनी है, ठीक है। 2 बाई करने पे ये 0 बन जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली करूंगा क्या, मैं 0 यहाँ पे ऐड कर दूंगा अगर मैं उस लॉजिक से गया, बट मुझे 0 ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरी वैल्यू 0 है इट मीन्स कि l की वैल्यू इनिशियली 1 थी, सो दैट्स वाई इफ प्रीफिक्स 0 नहीं है तो ही मैंने रिवर्स को इसके इक्वल बनाया, अदरवाइज रिवर्स जो है मेरा वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, I will explain you in brief again. For more editorial, subscribe this YouTube channel and like this video. Thank you guys for watching.